Hello friends, my name is Manisha from St. Wilfred College of Arts, Commerce and Science, Panvel. In this lecture, in this tutorial, we discuss about the carbon footprints from the green computing. So, पहले हम बात करते हैं introduction of carbon footprint. According to the WHO, World Health Organization, WHO stands for World Health Organization. A carbon footprint is a measure of impact your activities have on amount of carbon dioxide that is CO2 produced through the burning of fossil fuels. बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन से गैसेस वगैरह आते हैं. Burning of fossil fuels and is expressed as weightage of CO2 emission in tons. तो CO2 emission हर साल में कितना होता है? Okay, so फिर से बताती हूँ. According to the WHO, a carbon footprint is a measure of impact your activities have on amount of carbon dioxide CO2 produced through the burning of fossil fuels and is expressed as weightage of CO2 emission in tons. So friends, पहले हम देखते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट ये होता क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैसे मेजर किया जाता है. The total amount of GHG मतलब greenhouse gases produced to directly and indirectly support the human activities. Okay, जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं ह्यूमंस लोग, मतलब जैसे कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, कहाँ पे टीवी देख रहे हैं, कहाँ पे हम लोग कुछ बर्न कर रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री चला रहे हैं, कुछ है. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्टिविटी है इसका इफेक्ट कहाँ पे तो होता है इन्वायरमेंट पे. दैट इज डायरेक्टली भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली भी हो सकता है ह्यूमन एक्टिविटीज का. So the total amount of greenhouse gas produced to directly and indirectly support the human activities, usually expressed in equivalent tons of the carbon dioxide. Your carbon footprint is the sum of all emission of CO2 which were induced by your activities in a given time frame. Usually a carbon footprint is calculated for the time period of year. मतलब कार्बन फुटप्रिंट को फ्रेंड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक साल में एक बार. ओके, अब हम देखते हैं इसका बेसिक कैलकुलेशन कैसे चलता है. फ्यूल यूनिट CO2 इमिटेड पर यूनिट पेट्रोल. ओके, 1 लीटर पेट्रोल 1 लीटर, 2.3 kg gasoline 1 liter, 2.3 kg diesel 1 liter, then 2.7 kg oil that is heating and 1 liter 3.0 kg. So suppose if your car consumes 7.5 liter diesel per 100 kilometers, अगर आपकी कार 7.5 लीटर 7.5 लीटर 100 किलोमीटर्स के लिए वो क्या करती है, कंज्यूम करती है डीजल को. देन अ ड्राइव ऑफ 300 किलोमीटर डिस्टेंस, अगर हम लोग 300 किलोमीटर डिस्टेंस ड्राइव कर रहे हैं तो कितना कंज्यूम करेगा, 3 into 7.5 that is 22.5 liter diesel, which adds 22 plus 5 into 2.7 kg, क्योंकि डीजल कितना लेता है 2.7 kg फॉर ऑयल हीटिंग. दैट इज इक्वल्स टू 60.75 kg CO2. योर पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट. ये तो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग का पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट किया. समझ में आया इसका बेसिक कैलकुलेशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो आप सोचो कि ये सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग का हुआ, अगर जितनी कार ट्रैवल करती है उसका सबका क्या कैलकुलेट करोगे आप इसी तरह से, तो सोचो कितना होगा एक दिन का.
Okay, now see, a carbon footprint is the total greenhouse gas, that is the GHG emission caused by an individual event. Okay, इंडिविजुअल इवेंट, देन इंडिविजुअल से भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी से हो सकता है, सर्विस है, प्रोडक्ट है, एक्सप्रेस्ड एज द कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। फिर से बताती हूँ, अ कार्बन फुटप्रिंट इज द टोटल ग्रीन हाउस गैस, दैट इज GHG इमिशन caused by an individual event, organization, service or product expressed as carbon dioxide equivalent. Then greenhouse gases including the carbon containing gases. Okay, greenhouse gases में क्या रहता है आपका, carbon containing gases, that is carbon dioxide and methane can be emitted through the burning of fossil fuels, land clearance and the production and consumption of food, manufactured goods, materials, wood, roads, buildings, transportation and other services. So in most cases the total carbon footprint cannot be calculated. बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि टोटल जो रहता है कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट ही नहीं होता, because of inadequate knowledge of and data about the complex interaction between the contributing the processes. कभी कभी लोग छुपा के रखते हैं कि कितना मेजरमेंट हो रहा है, कितना कैलकुलेशन हो रहा है एक दिन में कार्बन फुटप्रिंट का. So including the influence of natural processes that store or release the carbon dioxide. So now we discuss about what are the ways to reduce the industry's carbon footprint. अब कौन से वेज है जो कि हम लोग इंडस्ट्री के कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं. ओके, इसको हम लोग कम कर सकते हैं. So देखिए, the most powerful industrial climate actions are refrigerant management. Okay, 90 billion tons of CO2 in 2017 to 2050 तक इसका इतना बढ़ सकता है. Since refrigerants have the thousands of times the warming the potential of CO2. So जितना देखिए फ्रेंड्स, जितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मतलब फुटप्रिंट बढ़ेगा उतना ज्यादा हम लोग GHG इमिशन दैट इज ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. देन लैंड बेस्ड वाइंड टर्बाइंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी 85 billions. Then reduced foods waste 71 billion and restoring tropical forest by ending the use of the land for the other purposes, that is the 61 billion. So friends, they calculate the benefits cumulatively to 2050 rather than annually because the industrial actions have long lead times. So a product or service or company's carbon footprint can be affected by the several factors including but not limited to. तो इसमें कौन से फैक्टर्स आते हैं? एनर्जी सोर्सेस है, देन ऑफसाइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, materials. These factors can also change with the location or industry. However, there are some general steps that can be taken to reduce the carbon footprint on a large scale. Next slide में फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम लोग कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं. ओके, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे कोई बड़ा लार्ज स्केल का ऑर्गेनाइजेशन का हो. अब देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है सेव आवर प्लैनेट. इमेज में आपको दिख रहा है कि हमको अगर प्लैनेट को सेव करना है, बचाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको CO2 इमिशन बहुत कम करना पड़ेगा. ओके, जो पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ रहा है उसको बहुत कम करना पड़ेगा. आपको पता है फ्रेंड्स, पिछले 2 साल से मतलब जहाँ से कोरोना स्टार्ट हुआ था वहीं से 2020 से अभी तक में आपने देखा होगा
कि मैंने बीच में न्यूज में पढ़ा था, सुना भी था कि पूना ही नहीं, आजू बाजू के भी इसका, बट मैंने खुद देखा था वो पूना का। वहां से उनका 3 महीने में या 2 महीने में, जिस दिन लॉकडाउन चल रहा था, पिछले साल की बात कर रही हूँ, 25% से उनका पोल्यूशन कम हुआ है। मतलब CO2 इमिशन देखो आप कितना कम हो गया। आप देख रहे हो कि हर साल 2010 तक बारिश ठीक थी, बट जैसे ही 2011 में आ गए, थोड़ा बारिश कम 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 हो रहा था। बट जैसे ही आपने देखा कि 90s के बाद में जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ, फिर से जब गाड़ियां रोड पे कम चली, ओके, वो टाइम पे पिछले साल से फिर टाइम पे बारिश आ रही है। इस बार भी बोला है वेदर फोरकास्टिंग वालों ने, इस बार भी टाइम पे बारिश होगी। व्हाई? बिकॉज ऑफ लेस पोल्यूशन। सो इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? ड्राइव लेस, सो गो इजी ऑन द गैस एंड ब्रेक्स। ओके, ड्राइविंग इफिशिएंटली कैन हेल्प टू रिड्यूस द इमिशन। अगर हम बराबर से हमेशा गाड़ी ये करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं गाड़ी को, ब्रेक्स को, उसके गैस को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उसका इमिशन कम कर सकते हैं। रेगुलरली सर्विस योर कार टू कीप इट मोर एफिशिएंट। तो चाहे आपकी कार हो, बाइक हो, कुछ भी, कौन सा भी व्हीकल हो, तो आप उसको अगर रेगुलर सर्विस करते हो, ओके, तो वो हमेशा आपकी अच्छी रहेगी और उससे इमिशन भी कम हो जाएगा। देन चेक योर टायर्स, कार के टायर्स आपको हमेशा चेक करने हैं। AC है, एयर कंडीशनिंग है, एंड इंटेंसिव सिटी ड्राइविंग कैन मेक इमिशन creep up. So use the cruise control on the long drives. अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आप क्रूज कंट्रोल को यूज करो। इन मोस्ट केसेस दिस कैन हेल्प टू सेव द गैस। क्रूज कंट्रोल से क्या होता है, आपका गैस का भी बहुत सेविंग होता है, गैस बहुत ज्यादा बचता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम में CO2 इमिशन कौन से इसमें हमारा ज्यादा हो रहा है, ये देखिए। देखिए CO2 इमिशन जो फेंट कलर में दिख रहा है आपको, फेंट पिस्ता कलर में 23% है। बहुत ज्यादा है। तो इसमें हमारा CO2 इमिशन निकलता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ओके, तो इट्स 23% फॉर इलेक्ट्रिसिटी CO2 इमिशन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी ये करते हैं, जनरेट करते हैं या यूज करते हैं वो टाइम पे। देन हमारा आता है डार्क वाला ब्लू कलर, जो कि आपको दिख रहा है 22%, डार्क वाला ब्लू कलर। ओके, दैट इज द 22%। ओके, देन हमारा जाता है वेस्ट वाटर। ओके, ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको वेस्ट वाटर, तो उसमें हमारा जाता है 3% वेस्ट वाटर में। देन हमारा ऑफ व्हाइट कलर है, दैट इज द कम्यूटिंग। ओके, ऑफ व्हाइट कलर कम्यूटिंग के लिए जाता है। देन हमारा जो है ग्रे कलर में एकेडमिक ट्रैवल। ओके, तो उसमें भी हमारा जाता है 13%। एंड एकेडमिक ट्रैवल मतलब ट्रांसपोर्टेशन में। एंड जो है फेंट ब्लू कलर में है 24%, दैट इज प्रोक्यूरमेंट। सो प्रोक्यूरमेंट मतलब हम लोग जो खरीदी वगैरह करते हैं। ओके, तो उसमें हमारा जाता है 24%। तो देखा फ्रेंड्स आपने यहाँ पे CO2 इमिशन कौन से इसमें कितना जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी 23%, गैस 22%, वाटर, वेस्ट वाटर 3%, commuting 15%, academics travel 13%, and procurement 24%. अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे कार्बन न्यूट्रलिटी है। यूज द कार्बन क्रेडिट्स टू रेड्यूस द ओवरऑल कॉर्पोरेट कार्बन फुटप्रिंट। अगर हम लोग कार्बन क्रेडिट्स यूज करते हैं तो कहाँ पे ना कहाँ पे हमारा कार्बन फुटप्रिंट रेड्यूस हो सकता है। देन ऑफसेट न्यू, use the carbon credits to make the new technology carbon neutral. Okay, then differentiator, make your company stand out from the competition, that is differentiator. And then offset used,
use the carbon credits to offset the carbon footprint of refurbished technology. Then environmental benefits. By promoting the reuse, you are helping the environment. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, reduce, recycle and reuse. ओके, तो जहाँ पे हम लोगों को कम से कम उसका ट्राई कर सकते हैं या कोई चीजें है हम लोग उसको रीयूज कर सकते हैं या फिर उसमें रिसाइकलिंग के लिए भी दे सकते हैं. Now move to the next slide. Carbon footprints. See, the carbon footprint is a measure of the impact our activities on the environment and the particular climate change. तो climate change के लिए कार्बन ही हमारा कार्बन emission ही हमारा responsible है. So it relates to the amount of greenhouse gases produced in our day-to-day lives through the burning fossil fuels for the electricity, heating and the transportation, etc. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 10 टिप्स फॉर रिड्यूसिंग योर कार्बन फुटप्रिंट. हम लोग कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए क्या क्या टिप्स यूज कर सकते हैं. पहले देखिए, कारपूलिंग एटलीस्ट वंस अ वीक. ओके, दूसरी क्या है, गो 1 वीक विदाउट यूजिंग डिस्पोजेबल कप्स गिवन टू एट द कॉफी शॉप्स. ओके, मतलब अगर हम लोग डिस्पोजेबल कप्स को ये यूज नहीं करते, तो कितने सारे हमारे कप्स बच सकते हैं, मतलब कितने सारा हम लोग ये कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट को. एक वीक अगर किया तो ट्राई टर्निंग ऑफसेट ऑफ द लाइट्स इन एन एम्प्टी रूम एट द होम और इन योर डोम. ओके, सो जहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी वगैरह आती है वहां पे आपको लाइट वगैरह ऑन रखने की कुछ जरूरत नहीं है. जहाँ पे बहुत ज्यादा वेंटिलेशन है, हवा ज्यादा आती है, वहां पर भी आपको फैन वगैरह चलाने की जरूरत नहीं है. तो आप नेचुरल में जो मिल रहा है उसका यूज कर सकते हैं, इससे भी हमारा CO2 इमिशन कम होता है. देन इंस्टेड ऑफ ईटिंग द लंच और ऑन कैंपस, ट्राई पैकेजिंग अ वेस्ट फ्री, मीनिंग नो प्लास्टिक लंच. ओके, तो प्लास्टिक बैग में जो लंच वगैरह हम लोग लेते हैं उसको भी हम लोग प्लास्टिक को नहीं बोल सकते हैं. देन अनप्लग योर कंप्यूटर एवरी नाइट फॉर 1 मंथ इफ यू हैव अ कंप्यूटर. अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आपका जैसे काम हो गया आप उसको अनप्लग करके रखिए. तो से आपने अगर ऐसे पूरा 30 डेज किया, 1 मंथ तक किया, तो उसमें भी आपका काफी सारा इलेक्ट्रिसिटी सेव हुए. इलेक्ट्रिसिटी सेव हो गया मतलब हीट कम होगी, मतलब हमारा कार्बन फुटप्रिंट कहाँ पे ना कहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा. यूज ओनली कोल्ड वाटर टू डू योर लॉन्ड्री फॉर 1 मंथ. ओके, जो कि हम लोग गीजर वगैरह यूज करते हैं लॉन्ड्री कपड़े धोने के लिए, पानी गर्म करते हैं, तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग जो कोल्ड वाटर है वो यूज कर सकते हैं 1 महीने के लिए. देन ट्राई स्किपिंग अ ट्रिप टू द स्टोर एंड शॉप ऑनलाइन. ओके, देन शॉपिंग के लिए बाहर जाना घूमना ये छोड़ के हम लोग ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं घर बैठे बैठे. Then try reducing your printing a little bit each day and only print what is absolutely necessary. So हर एक पेज को प्रिंट ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, जिसका नीड है कम से कम पेपर आप यूज करो. तो जितने पेपरलेस हम लोग हो जाएंगे उतने ऑनलाइन, जितने पेपरलेस ऑफिसेस रहेंगे उतने हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और उससे भी CO2 इमिशन कम होगा और पेड़ भी हमारे कम कटेंगे. देन कट योर शावर टाइम बाय 2 minutes फॉर द 1 month. ओके, एंड reduce your bottled water consumption for the 7 days. So these are the simple things we can do for reducing your carbon footprints. Then अब देखिए रीजन वाइज, कंट्री वाइज है. यूनाइटेड किंगडम 77.1, वेस्टर्न यूरोप 6.8, ईस्टर्न यूरोप 6.3, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन 3.0, नॉर्थ अमेरिका 16.1, सब सहारन अफ्रीका 0.8, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका 6.0, देन सेंट्रल एशिया 7.3,
East Asia and Pacific 6.3, South Asia 1.4, other developed countries 9.7 and other developing countries 1.6. ओके, सो ये इसका एवरेज टन्स है पर ईयर का, पर मतलब पर्सन्स का. ओके, देन फ्यूल टाइप में कौन से आती है? पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल दैट इज ऑयल फॉर हीटिंग एंड केरोसिन. ओके, CO2 इमिटेड पर यूनिट 1 लीटर के लिए 2.3 kg CO2 इमिट होता है. ओके, पेट्रोल. गैसोलीन के लिए 1 लीटर 2.3 kg. देन डीजल के लिए 2.7, ये मैंने इसका कैलकुलेशन भी आपको बताया था. देन ऑयल हीटिंग 1 लीटर 3 kg. तो केरोसिन 1 लीटर 2.48 kg. So learning objective, determine your carbon footprint using a calculator online, and relate use of the fossil fuels to your carbon footprint. Compare your carbon footprint to that your classmates, schools, community and nation. Describe the components of the factors associated with the carbon footprint. Predict ways to reduce your carbon footprint, and discuss the political ramifications of the climate change or the global warming. Okay, so these are the very important learning objectives. देन कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी है, नेचुरल गैस है, हीटिंग ऑयल है, कोल, एलपीजी, प्रोपेन, उड़न, एंड कैलकुलेट द हाउस होल्ड फुटप्रिंट ऑल्सो. ओके, देन इमिशन फ्रॉम द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इमिशन पर पैसेंजर पर किलोमीटर ट्रेवल्ड. देन डोमेस्टिक फ्लाइट है, लॉन्ग हॉल फ्लाइट है, कार है और 1 पैसेंजर, बस है, कार फॉर द 4 पैसेंजर्स है, डोमेस्टिक रेल है, कोच है, यूरोस्टार है. तो सोचो आप CO2 इमिशन कितना इमिट करता होगा. सेकेंडरी इफेक्ट्स फ्रॉम द हाई अल्टीट्यूड नॉन CO2 emissions. Then top options for reducing your carbon footprint, average reduction per person per year in the tons of CO2. Live car free 2.04, battery electric car 1.95, one less long haul flight per 1.68, renewable energy 1.6, public transport 0.98, refurbishment renovation 0.895, vegan diet 0.8, heat pump 0.795, improved cooking equipment 0.65, and renewable based heating 0.64. So I hope कि student आपको समझ में आया होगा. So conclusion में देखते क्या है. It can be concluded that the carbon footprints as well as the carbon credits carries an importance in our daily life. So every should realize that it effect and should try to protect the nature from its adverse effect. तो हमारा हर एक human being का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हमको कैसे भी करके प्लैनेट को बचाना है, टू सेव आवर इन्वायरमेंट. द कार्बन क्रेडिट बिजनेस इज अ रैपिडली चेंजिंग business and people should be aware that market rate products and registration program can change the quickly. So I hope कि आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा. So thank you.